Hello everyone, Jay Swaminarayan to you all. Today I am going to explain you the unit number 5 in economics, and it is about the concept of cost of production and revenue. So in that, the first topic which is related to classification of production cost. Classification, the production cost is being divided into two, that is short run production cost and long run production cost. In the short run production cost, the fixed cost, variable cost are included, and also the average fixed cost and average variable cost is also included. While in the long run production cost, there is no such types. So first of all, we will continue the explanation that is related to fixed cost. In short period, either production increase or decrease or remains zero, there is no change in production cost. That type of cost is known as fixed cost. तो शॉर्ट रन के टाइम पीरियड में भले ही प्रोडक्शन इंक्रीज हो, डिक्रीज हो या फिर जीरो हो जाए, उस वक्त प्रोडक्शन कॉस्ट में किसी भी तरह का चेंज अराइज नहीं होता, तो उस टाइप के कॉस्ट को आप फिक्स कॉस्ट कह सकते हो. फिक्स कॉस्ट इज ऑल्सो नोन एज ओवरहेड कॉस्ट. फिक्स कॉस्ट को ओवरहेड कॉस्ट भी कह सकते हैं. इन शॉर्ट पीरियड देयर इज नो रिलेशन बिटवीन फिक्स कॉस्ट एंड क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन. तो शॉर्ट टर्म के टाइम पीरियड में फिक्स कॉस्ट और क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन के बीच में कोई रिलेशनशिप नहीं होता. फॉलोइंग थिंग्स आर इंक्लूडेड इन द फिक्स कॉस्ट. For example, permanent staff salary, rent of factory building, house property tax, license fee, interest on capital, premium of insurance, etc. तो ये कुछ expenses है जो fixed cost में include होते हैं. For example, permanent staff salary हो या rent of factory building हो, house property tax हो, license fee हो, interest on capital हो या प्रीमियम ऑफ इंश्योरेंस हो, ये सारी चीजें फिक्स कॉस्ट में इंक्लूड होती है, जिसे आप ओवरहेड कॉस्ट भी कह सकते हैं. इन द नेक्स्ट स्लाइड आई एम गोइंग टू कंटिन्यू विद द एक्सप्लेनेशन ऑफ डायग्राम दैट इज रिलेटेड टू फिक्स कॉस्ट. Hello everyone, so let us start the explanation that is related to diagram of total fixed cost. So here one explanation is being given that is including a table of that is related to unit of output or production and total fixed cost. So here it is shown that the production of pen is either 0 or 10, 20, 30, 40. With the increase in unit of production, cost remains the same, that is ₹100. This cost is fixed cost. यहाँ पे आप एक टेबल देख सकते हो जहाँ पे यूनिट ऑफ प्रोडक्शन जो पेन का है वो यहाँ पे प्रेजेंट किया गया है, जो 0, 10, 20, 30, 40 और 50 है. और यहाँ पे देख सकते हो आप कि यूनिट ऑफ प्रोडक्शन भले ही जितना बढ़ रहा हो, कॉस्ट जो है वो सेम रह रही है, वो है ₹100. सो इस तरह के कॉस्ट को आप फिक्स कॉस्ट कह सकते हो, जो प्रोडक्शन के क्वांटिटी के बढ़ने के बावजूद भी फिक्स ही रहती है. This type of cost is known as total fixed cost. Here production unit change but the cost does not change. Therefore it is known as total fixed cost. तो यहाँ पे प्रोडक्शन का जो यूनिट है वो तो इंक्रीज हो रहा है, लेकिन जो कॉस्ट है वो सेम ही रह रही है. इस वजह से इसको टोटल फिक्स कॉस्ट कहते हैं. Diagrammatic presentation. In diagram, on x-axis output is being shown and on y-axis total fixed cost in rupees is shown. So according to diagram, either production is 0, 10, 20, 30, 40 or 50. Production cost is 100. Only in the diagram TFC curve is parallel to x-axis. यहाँ पे x-axis में आपको आउटपुट प्रेजेंट किया गया है, जबकि y-axis पे फिक्स कॉस्ट को रिप्रेजेंट किया गया है. तो यहाँ पे आप देख सकते हो डायग्राम में क्लियरली कि भले ही आउटपुट कितना भी इंक्रीज हो रहा हो, जो इंक्रीज जो आउटपुट में दिखाया गया है वो ABCDE इन पॉइंट्स को प्लॉट करते हुए दिखाया गया है. तो भले ही आउटपुट कितना भी इंक्रीज हो रहा हो, लेकिन जो फिक्स कॉस्ट है वो फिर भी सेम ही रह रही है, जो आपको ₹100 के फॉर्म में दिखाया गया है. So that why
the fixed cost, the curve that is TFC curve is lying parallel to x-axis, which is showing that no matter how much increase is there in the output, the cost is remaining the same, that is the fixed cost. Okay. Hello everyone, so let us continue with the explanation that is related to variable cost. When cost incurred on variable factor by producer is called variable cost. In short term, with the change in quantity of production, cost also changes. With the increase in production, cost also increases. And with the decrease in production, cost also decreases. And if production is zero, then cost is also zero. तो ये जो वेरिएबल कॉस्ट जो रहता है वो जब तब अराइज होता है जब कोई प्रोड्यूसर वेरिएबल फैक्टर के ऊपर किसी तरह का कॉस्ट इंकर कर रहा हो। जो शॉर्ट टर्म के टाइम पीरियड में जब क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन में किसी तरह का चेंज आता है तो उसके साथ साथ कॉस्ट में भी चेंज आता है। फॉर एग्जांपल, अगर प्रोडक्शन इंक्रीज होता है तो उसके साथ कॉस्ट भी इंक्रीज होगा, और अगर प्रोडक्शन डिक्रीज होता है तो उसके साथ साथ कॉस्ट भी डिक्रीज हो जाएगा, और प्रोडक्शन जीरो हो जाता है तो कॉस्ट भी जीरो हो जाएगा। तो इस तरह के कॉस्ट को आप वेरिएबल कॉस्ट कह सकते हो जो प्रोडक्शन के साथ वेरी होता रहता है। वेरिएबल कॉस्ट इज आल्सो नोन एज अनस्टेबल और डायरेक्ट और मेन कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट को आप अनस्टेबल, डायरेक्ट या मेन कॉस्ट कह सकते हो। दिस कॉस्ट हैज डायरेक्ट पॉजिटिव रिलेशन विद क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन। इस तरह के कॉस्ट का एक तरह से डायरेक्ट रिलेशन होता है क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन के साथ, क्योंकि वो प्रोडक्शन की क्वांटिटी के साथ वेरी होता रहता है। In variable cost, following things are included. For example, price of raw material, energy consumption, transportation expenditure, labor wages, taxes on products, sales tax, etc. तो प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल, एनर्जी कंजप्शन, ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंडिचर, लेबर वेजेस, टैक्स जो प्रोडक्ट के ऊपर लगता है, सेल्स टैक्स जो होता है, ये सारी चीजें वेरिएबल कॉस्ट में इंक्लूड होती है। एज प्रोडक्शन इंक्रीजेस दिस कॉस्ट आल्सो इंक्रीजेस। तो प्रोडक्शन के इंक्रीज होने के साथ साथ ये कॉस्ट भी इंक्रीज होता रहता है। Therefore, this is known as variable cost. इस वजह से इसको वेरिएबल कॉस्ट आप कह सकते हैं। Difference between fixed cost and variable cost is possible in short period of time only. In long run, all costs are variable. तो जो डिफरेंस फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट में अराइज होता है वो सिर्फ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए अराइज होता है। लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम में या लॉन्ग रन में जो भी जितने भी कॉस्ट होते हैं वो सारे वेरिएबल कॉस्ट होते हैं। When production is zero, here you can see a table that is showing unit of output and total cost, total variable cost. So when production is zero, variable cost is zero. But as production increases, variable cost also increases. यहाँ पे जब प्रोडक्शन जीरो था तो वेरिएबल कॉस्ट भी जीरो है, लेकिन जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ रहा है तो उसके साथ साथ वेरिएबल कॉस्ट भी इंक्रीज होता जा रहा है। From table we can see till 30 unit variable cost is increasing at diminishing rate because increasing return to scale is applicable. तो 30 यूनिट के पॉइंट तक वेरिएबल कॉस्ट जो है वो इंक्रीज हो रहा है, लेकिन एक डिमिनिशिंग रेट से इंक्रीज हो रहा है। आफ्टर 30 यूनिट डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल इज एप्लीकेबल, ड्यू टू दैट वेरिएबल कॉस्ट इज इंक्रीजिंग एट इंक्रीजिंग रेट। और 30 यूनिट्स के बाद जो वेरिएबल कॉस्ट है वो इंक्रीज हो रहा है इंक्रीजिंग रेट के साथ, और इससे आप पता लगा सकते हैं कि ये एक ऐसा कॉस्ट है जो प्रोडक्शन के साथ बढ़ता रहता है। So in the next slide I am going to continue with the diagram that is related to variable cost. Hello everyone, let us continue with the diagram that is of total variable cost. In diagram, on x-axis output is being measured and on y-axis total variable cost in rupees is being shown. So as production increases from 10, 20, 30, total variable cost also increases from 80, 150 and 210. So total variable cost has positive slope from initial point as it increases at decreasing rate initially, later on at increasing rate.
तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक्स एक्सिस में आउटपुट यानी प्रोडक्शन को मेंशन किया गया है, जबकि वाई एक्सिस में जो टोटल वेरिएबल कॉस्ट है उसे रिप्रेजेंट किया गया है। जैसे प्रोडक्शन इंक्रीज होता है 10, 20 और 30 यूनिट से, एक उसमें उसी के साथ साथ वेरिएबल कॉस्ट जो है वो भी इंक्रीज हो रहा है 80, 150 और 210 यूनिट से, जो यहाँ पॉइंट ए बी सी डी के थ्रू दिखाया गया है। The total variable cost has positive slope from the initial point as it increases at decreasing rate initially, later on at increasing rate. तो यहाँ पे जो टोटल वेरिएबल कॉस्ट का जो कर्व है वो एक पॉजिटिव स्लोप दिखा रहा है, क्योंकि वो प्रोडक्शन के साथ इंक्रीज हो रहा है और अपवर्ड मूव कर रहा है। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि पहले इनिशियली जो वेरिएबल कॉस्ट है वो डिक्रीजिंग रेट से आगे बढ़ रहा है, जबकि उसके बाद वो इंक्रीजिंग यानी 0.30 के बाद इंक्रीजिंग रेट से आगे बढ़ रहा है। So this much explanation you should be able to give about the diagram of variable cost if it is being asked in the exam. Okay everyone, so let us continue with the explanation related to total cost. There is cause and effect relationship between total production and total cost. If total production is more, then total cost is also more. Sum of total fixed cost and total variable cost is equal to total cost. The cause and effect relationship, यहाँ पे जो total production और total cost के बीच में एक cause और effect relationship होता है। अगर टोटल प्रोडक्शन ज़्यादा है तो उसके हिसाब से टोटल कॉस्ट भी ज़्यादा रहता है। सम ऑफ टोटल फिक्स कॉस्ट एंड टोटल वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट। जब आप टोटल फिक्स कॉस्ट को टोटल वेरिएबल कॉस्ट को से ऐड करते हो तब आपको टोटल कॉस्ट मिलता है। विद द इंक्रीजिंग प्रोडक्शन फिक्स कॉस्ट रिमेन फिक्स बट वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीजेस। तब जब भी प्रोडक्शन इंक्रीज होता है तो फिक्स कॉस्ट तो फिक्स ही रहता है, लेकिन वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज होता रहता है। टोटल कॉस्ट इंक्रीजेस एज इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ वेरिएबल कॉस्ट। जो टोटल कॉस्ट है वो इंक्रीज होता है जब भी वेरिएबल कॉस्ट के अमाउंट में अपलिफ्टमेंट आए तब। देयरफॉर टीसी कर्व इज अबव टीवीसी कर्व। इस वजह से जो टीसी का जो कर्व होता है वो टीवीसी कर्व के ऊपर आता है। Note that difference between TC and TVC is constant, because of which TC and TVC are parallel to each other. Generally जो difference TVC और TC कर्व में TC में होता है वो constant होता है, वो ज़्यादातर similar होता है। इस वजह से जो TC का जो कर्व है वो TVC कर्व के ऊपर आता है। That we can also see in this diagram. On x-axis production and on y-axis cost is shown with the increase in production. तो यहाँ पे x-axis में production को दिखाया गया है, y-axis में cost को represent किया गया है. So there is no change in the fixed cost but variable cost increases. तो fixed cost क्योंकि वो fix ही है, इस वजह से fixed cost में किसी तरह का change तो arise नहीं हो रहा, लेकिन variable cost जो है वो increase होती दिखाई दे रही है diagram में. As a result of increasing production, total cost also increases. तो क्योंकि यहाँ पे प्रोडक्शन इंक्रीज हो रहा है इस वजह से टोटल कॉस्ट भी इंक्रीज होता जा रहा है। टोटल कॉस्ट कर्व बिगिंस फ्रॉम पॉइंट P ऑन एक्स एक्सिस। जो टोटल कॉस्ट कर्व है वो पॉइंट P से हमें y एक्सिस पे दिखाया गया है। This shows that if output is 0, then TFC is equal to 100, while TVC is equal to 0. तो यहाँ पे जब आउटपुट 0 है तब उस वक्त TFC जो टोटल फिक्स कॉस्ट है वो 100 है, that is being represented by OP point, while TVC जो है वो 0 है, that is total variable cost. So as the production increases, TFC remain constant and TVC increases. तो प्रोडक्शन के इंक्रीज होने के साथ जो टोटल फिक्स कॉस्ट है वो तो कांस्टेंट रहता है, उसमें किसी तरह का चेंज नहीं आता, लेकिन TVC जो है वो इंक्रीज होता रहता है. Due to this, TVC curve moves upward from left hand side to right hand side and TC curve is upside and parallel to TVC curve. तो
यहाँ पे आप देख सकते हो कि प्रोडक्शन के इंक्रीज होने के साथ साथ वेरिएबल कॉस्ट भी इंक्रीज हो रहा है। इस वजह से टोटल वेरिएबल कॉस्ट जो है वो अपसाइड जाता है, यानी कि अपवर्ड की ओर उसका कर्व जा रहा है, लेफ्ट हैंड साइड टू राइट हैंड साइड। और टोटल कॉस्ट का जो कर्व है वो भी उसके पैरेलल में है, क्योंकि यहाँ पे टीसी और टीवीसी में जो भी चेंज अराइज हो रहे हैं वो कांस्टेंट बेस पे अराइज हो रहा है, वो काफी हद तक सिमिलर है। इस वजह से टीवीसी के ऊपर आपको टीसी का जो कर्व है वो आपको पैरेलल दिखाई देगा। Now, next point is related to average cost. Hello everyone, I am continuing with the explanation that is related to average cost. So, average cost is also known as average total cost. Average cost is cost per unit of production, and average cost is found by dividing total cost by unit of production. तो एवरेज कॉस्ट जो रहता है वो कॉस्ट पर यूनिट ऑफ प्रोडक्शन होता है, और एवरेज कॉस्ट आपको तब मिलता है जब आप टोटल कॉस्ट को यूनिट ऑफ प्रोडक्शन के साथ डिवाइड करते हो। टोटल कॉस्ट इज द सम ऑफ टोटल फिक्स्ड कॉस्ट एंड टोटल वेरिएबल कॉस्ट, देयरफॉर टोटल फिक्स्ड कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट इज डिवाइडेड बाय प्रोडक्शन यूनिट, वी गेट एवरेज कॉस्ट। जो टोटल कॉस्ट होता है वो आपको तब मिलता है जब आप टोटल फिक्स कॉस्ट से टोटल वेरिएबल कॉस्ट को ऐड करते हो, और उसके बाद जब आप प्रोडक्शन यूनिट से टोटल फिक्स कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट को डिवाइड करते हो तो आपको एवरेज कॉस्ट मिलती है। यानी कि जब आप टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट को जब प्रोडक्शन यूनिट के साथ डिवाइड करते हो तब आपको एवरेज कॉस्ट मिलता है। Now, in the next slide, I will continue with the rest of the explanation that is related to average cost. Hello everyone, let us start with the point that is related to average cost, and here in this slide, formula as well as table is being represented. So, average cost is equal to total cost upon total production, or average cost is equal to fixed cost plus variable cost upon total production. That is, in short, it can be stated like AC is equal to TC upon TP, in which AC is equal to average cost, TC is equal to total cost, and TP is equal to total production. So, here the table is represented which contains the production in units and total cost in rupees, as well as average cost, which is being found after dividing the total cost by total production. So, as the level of output increases, the total cost rises. जैसे जैसे आउटपुट इंक्रीज हो रहा है, प्रोडक्शन जो यूनिट्स में है वो इंक्रीज हो रहा है, तो उसके साथ साथ टोटल कॉस्ट जो है वो भी बढ़ रहा है। बट द एवरेज कॉस्ट फॉल्स then remain, but initially the average cost falls, then remain constant and subsequently rises. और आप यहाँ पे देख सकते हो कि पहले जो एवरेज कॉस्ट है वो नीचे आ रहा है, फिर 3 to 4 पॉइंट में वो कांस्टेंट है, और उसके बाद वो सब्सिक्वेंटली बढ़ रहा है। So on the basis of this table, you can also draw a diagram that is related to average cost, which is there in the next slide. Hello everyone. So let us continue with the explanation that is related to average cost curve. So here the diagram is being represented of average total cost, and you can see that the average cost curve is actually U-shaped. So let us understand why it is U-shaped. Initially, with an increase in production, average cost decreases, then at a particular level of production it is minimum, but after that it increases with the increase in production. तो पहले जो एवरेज कॉस्ट है वो डिक्रीज होता है, फिर एक लेवल ऑफ प्रोडक्शन पे आके वो मिनिमम हो जाता है, और उस लेवल को क्रॉस करने के बाद वो इंक्रीज होने लगता है विद द इंक्रीज इन प्रोडक्शन यूनिट्स। इस वजह से जो एवरेज कॉस्ट कर्व है वो यू शेप में आपको देखने को मिल सकता है। सो in the next slide, I am going to continue with a new point that is related to marginal cost.
Hello everyone, I am continuing with the explanation of marginal cost. We know that if production is increased, the cost of production also increases with the increase or decrease of one unit in total production. तो प्रोडक्शन बढ़ता है तो उसके साथ साथ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो होता है वो भी बढ़ता है या फिर डिक्रीज हो जाता है जो एक यूनिट के ऐड होने या घटने से टोटल प्रोडक्शन में चेंज आने लगता है. Whatever change take place in total cost is known as marginal cost. तो किसी एक यूनिट के ऐड होने से ये किसी एक यूनिट के बढ़ने या घटने में जो टोटल प्रोडक्शन में चेंज आता है उसको उस चेंज को जो टोटल कॉस्ट में अराइज होता है उसे हम मार्जिनल कॉस्ट कहते हैं. In short, marginal cost is the change in total cost when an additional unit of output is produced. तो मार्जिनल कॉस्ट एक तरह का चेंज रिप्रेजेंट करता है टोटल कॉस्ट में किसी एडिशनल यूनिट ऑफ आउटपुट के ऐड हो जाने से. Hello everyone, let us try to understand the formula that is related to marginal cost. So by difference of n unit of production cost and n minus 1 unit of production cost, we can find out marginal cost. तो n यूनिट ऑफ प्रोडक्शन कॉस्ट और n माइनस 1 यूनिट ऑफ प्रोडक्शन कॉस्ट को कॉस्ट के डिफरेंस से आपको मार्जिनल कॉस्ट मिल सकता है. बाय द वे ऑफ फॉर्मूला इट कैन बी पुट एज MCN is equal to TCN minus TCN minus 1. N is equal to number of units of production. MCN is equal to marginal cost of n unit of output. And TCN is equal to total cost of n units of output. TCN minus 1 is equal to total cost of n minus 1 unit of output. By putting volume of n is equal to 3 in formula, we get MC3 is equal to TC3 minus TC3 minus 1 is equal to TC3 minus TC2. Where TC3 is equal to 21 and TC2 is equal to 16. So MC3 is equal to 21 minus 16 is equal to 5, that is marginal cost. So the table shows that marginal cost of third unit is the difference of the third and second unit of total cost. तो मार्जिनल कॉस्ट फाइंड आउट करने के लिए आपके पास पहले आउटपुट और टोटल कॉस्ट दोनों का होना जरूरी है. सपोज आपको मार्जिनल कॉस्ट थर्ड यूनिट ऑफ आउटपुट यानी थर्ड यूनिट ऑफ प्रोडक्शन का फाइंड आउट करना है तो थर्ड यूनिट का ऑफ आउटपुट का जो मार्जिनल कॉस्ट होगा वो थर्ड और सेकेंड यूनिट ऑफ टोटल कॉस्ट जो रहेगा उसके बीच का डिफरेंस रहेगा. तो यहाँ पे थर्ड यूनिट ऑफ आउटपुट जो है ऑफ प्रोडक्शन का वो 21 है और सेकेंड यूनिट ऑफ आउटपुट का जो है वो 16 है. तो इन दोनों के जो डिफरेंस निकलेगा दैट इज 5, वो मार्जिनल कॉस्ट होगा. फ्रॉम द टेबल इट इज नोन दैट टिल द इंक्रीज इन थर्ड यूनिट द मार्जिनल कॉस्ट इज डिक्रीजिंग एंड एट द थर्ड यूनिट मार्जिनल कॉस्ट इज मिनिमम. आफ्टर दैट देयर इज अ कंटिन्यूअस इंक्रीज इन मार्जिनल कॉस्ट. यहाँ पे आप देख सकते हो कि थर्ड यूनिट तक जो मार्जिनल कॉस्ट है वो डिक्रीज हो रहा है, थर्ड यूनिट पे आके वो सबसे ज़्यादा मिनिमम है और थर्ड यूनिट के बाद वो कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रहा है. सो ऑन द बेसिस ऑफ दैट बिहेवियर ऑफ मार्जिनल कॉस्ट यू कैन ऑल्सो ड्रॉ अ डायग्राम फॉर गिविंग द प्रॉपर एक्सप्लेनेशन दैट इज रिलेटेड टू मार्जिनल कॉस्ट. Hello everyone, let us continue with the explanation that is related to diagram of marginal cost. So as shown in the diagram, in the beginning marginal cost decreases as total average cost decreases initially and after some time there is a increase. यहाँ पे डायग्राम में आप देख सकते हो कि मार्जिनल कॉस्ट जो है वो डिक्रीज हो रहा है टोटल एवरेज कॉस्ट के डिक्रीज होने के साथ साथ और कुछ टाइम के बाद वो इंक्रीज हो रहा है. Because initially with the increase in production total variable cost increases at diminishing rate and after some point it increases at increasing rate. ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब पहले प्रोडक्शन इंक्रीज होता है तब टोटल वेरिएबल कॉस्ट जो है वो डिमिनिशिंग रेट से इंक्रीज होता है. उसके कुछ टाइम बाद और उसके बाद जो टोटल वेरिएबल कॉस्ट जो होता है
वो इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज होने लगता है. Due to that, with the increase in production, marginal cost decreases, and after some point it increases. तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट में चेंज आने की वजह से जो मार्जिनल कॉस्ट है वो पहले प्रोडक्शन के साथ डिक्रीज होने लगता है, प्रोडक्शन के इंक्रीज होने के साथ डिक्रीज होने लगता है, और कुछ पॉइंट के बाद वो इंक्रीज होने लगता है. In the diagram, marginal cost is like hockey stick. You can see the diagram that the marginal cost is being presented in the form of hockey stick. Till third unit, marginal cost is decreasing. Therefore, marginal cost curve has negative slope. After third unit, with the increase in production, MC increases. Therefore, marginal cost curve has positive slope. तो थर्ड यूनिट तक जो मार्जिनल कॉस्ट है वो डिक्रीज होने लगता है, इस वजह से उसका एक नेगेटिव स्लोप है. और थर्ड यूनिट के बाद जो मार्जिनल कॉस्ट है वो इंक्रीज होने लगता है, इस वजह से मार्जिनल कॉस्ट कर्व का एक पॉजिटिव स्लोप भी यहाँ पे बन रहा है. सो इन द नेक्स्ट स्लाइड आई विल कंटिन्यू विद द एक्सप्लेनेशन ऑफ मार्जिनल कॉस्ट, with the explanation of relationship between marginal cost and average cost. Hello everyone, let us start with the interrelationship between average cost and marginal cost. Here, the relationship between average cost and marginal cost hold an important place in the study of production cost. तो प्रोडक्शन कॉस्ट की स्टडी में जो रिलेशनशिप एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट का रहता है उसे समझना बहुत ज़रूरी है. Cost per unit of output is called average cost, and the marginal cost is the cost increased to produce one extra unit of commodity. जो cost per unit of output होता है वो उसको हम average cost कहते हैं, और जो cost किसी extra additional unit को produce करने के लिए लगता है उसे हम marginal cost कहते हैं. Producer in the long run decide to continue production when price of commodity is more than average cost. तो प्रोड्यूसर लॉन्ग रन में प्रोडक्शन को कंटिन्यू करने का डिसीजन तब लेते हैं जब प्राइस ऑफ कमोडिटी जो रहती है वो एवरेज कॉस्ट से ज़्यादा हो, एंड इन शॉर्ट रन विल टेक डिसीजन टू कंटिन्यू द प्रोडक्शन व्हेन प्राइस ऑफ कमोडिटी इज मोर देन मार्जिनल कॉस्ट. शॉर्ट रन में वो प्रोडक्शन को कंटिन्यू करने का डिसीजन तब लेते हैं जब प्राइस जो कमोडिटी की रहती है वो मार्जिनल कॉस्ट से ज़्यादा हो. In this way, the average cost and marginal cost plays an important role in taking a decision about production. इस वजह से average cost और marginal cost जो है वो एक काफ़ी अहम भूमिका निभाते हैं production oriented decision लेने में. Now, with the help of table and diagram in the next slide, we will try to understand the relationship between average cost and marginal cost. तो जो डायग्राम नेक्स्ट स्लाइड में दी गई है उसके हेल्प से हम थोड़ा समझेंगे कि एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट का रिलेशनशिप कैसा होता है. हेलो एवरीवन, सो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड द relationship, interrelationship between average cost and marginal cost with the help of this table. So as shown in the schedule, as output increases, initially average cost and marginal cost both decreases because of law of increasing return to scale is applicable. तो यहाँ पे आप टेबल में देख सकते हो कि जैसे आउटपुट यानी प्रोडक्शन जैसे इंक्रीज हो रहा है उसके साथ साथ मार्जिनल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट दोनों डिक्रीज हो रहे हैं क्योंकि लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल उस वक्त एप्लीकेबल है. And at the fourth point of unit of output, average cost and marginal cost both are equal. AC is minimum. तो यहाँ पे फोर्थ यूनिट पे जो एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट है दोनों इक्वल है, और आफ्टर दैट ड्यू टू डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल एवरेज कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट बोथ इंक्रीजेस. उसके फोर्थ यूनिट के बाद जो एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट है वो दोनों इंक्रीज होने लगते हैं क्योंकि उस वक्त डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल एप्लीकेबल होता है. सो ऑन द बेसिस ऑफ दिस टेबल वी कैन ड्रॉ a diagram that will be helpful to show the interrelationship between average cost and marginal cost. Hello everyone, I am going to continue with the explanation that is showing the relationship between average cost and marginal cost. Here a diagram is being represented that is helpful to show the relationship.
So on x-axis output is being shown while on y-axis average cost and marginal cost is being presented. So marginal cost is being shown lesser than average cost in the first scenario. So initially average cost decreases, then marginal cost also decreases, but marginal cost decreases more rapidly than average cost. तो यहाँ पे पहले जब एवरेज कॉस्ट डिक्रीज होने लगता है तो उसके साथ साथ मार्जिनल कॉस्ट भी डिक्रीज होने लगता है, लेकिन जो मार्जिनल कॉस्ट है वो एवरेज कॉस्ट के कंपैरिजन में ज़्यादा रैपिडली डिक्रीज होता है. इस वजह से जो मार्जिनल कॉस्ट का कर्व जो रहता है दैट रिमेन्स बिलो द एवरेज कॉस्ट कर्व. So in the first scenario the marginal cost is shown lesser than average cost because it decreases more rapidly than the average cost curve. Now in the second scenario, that is marginal cost is equal to average cost. When average cost is minimum, at that time marginal cost curve intersect to average cost curve from below and the marginal cost and average cost curve becomes equal. तो सेकेंड सिनेरियो में मार्जिनल कॉस्ट को एवरेज कॉस्ट के बराबर दिखाया गया है, क्योंकि एक पॉइंट पे जब एवरेज कॉस्ट मिनिमम हो जाता है तो उस पॉइंट पे मार्जिनल कॉस्ट एवरेज कॉस्ट को इंटरसेक्ट करता है और उस पॉइंट पे दोनों एवरेज मार्जिनल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट दोनों इक्वल हो जाते हैं. नाउ वन थर्ड सिनेरियो इज ऑल्सो देयर दैट इज helpful to show the relation between average cost and marginal cost, which is there in the next slide. Hello, in the third scenario it is being presented that marginal cost is greater than average cost. So when marginal cost curve intersect the average cost curve, then both costs start to increases. तो एक पॉइंट पे जब मार्जिनल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, उस पॉइंट के बाद बोथ मार्जिनल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट दोनों इंक्रीज होने लगते हैं. आफ्टर दिस पॉइंट इंक्रीज इन द एवरेज मार्जिनल कॉस्ट इज रैपिड देन द इंक्रीज इन एवरेज कॉस्ट, देयरफॉर मार्जिनल कॉस्ट कर्व मूव्स अबव द एवरेज कॉस्ट कर्व इन द गिवन डायग्राम. तो डायग्राम में आपने देखा होगा कि वो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जब दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, उस पॉइंट के बाद जो मार्जिनल कॉस्ट जो होता है वो एवरेज कॉस्ट कर्व के ज़्यादा रैपिडली इंक्रीज होने लगता है. मीन्स एवरेज कॉस्ट कर्व से ज़्यादा रैपिडली इंक्रीज होता है, इसलिए मार्जिनल कॉस्ट का जो कर्व रहता है वो एवरेज कॉस्ट कर्व के ऊपर दिखता है. सो दिस वेर द three scenario that is showing the relationship between average cost and marginal cost. In the next slide I will continue with a new point. Hello everyone, so let us continue with the explanation that is related to long run average cost. According to Benham, in the long run there is no distinction between fixed cost and variable cost. So the classification of cost as fixed and variable become irrelevant in the long run as all factors of production becomes variable. तो बेनहम के हिसाब से जो लॉन्ग रन का टाइम पीरियड होता है उसमें फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट में किसी तरह का डिस्टिंक्शन या डिफरेंस नहीं होता. The classification of cost as fixed and variable becomes irrelevant in the long run as all factors of production becomes variable. तो जो भी क्लासिफिकेशन फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट का जो रहता है वो इररिलेवेंट हो जाता है लॉन्ग रन में, क्योंकि हर एक प्रोडक्शन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो है वो लॉन्ग रन में वेरिएबल होता है. In order to increase production in the long run, factors of production can be altered in any proportion. तो लॉन्ग रन में प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में किसी भी तरह का चेंज लाया जा सकता है. Therefore the scale of firm expand, जिससे कि हमारे फर्म का जो स्कोप है, जो एरिया है वो एक्सपांड होने लगता है. For example, the remuneration paid to an employee is considered as fixed cost in the short run. However, in the long run, in response to increase in demand, if the producer decide to increase production, then he or she may have to employ new worker, buy a new land, or rent a new land, etc. Thus factors which are fixed in the short run become variable in the long run. तो यहाँ पे एक एग्जांपल भी दिया गया है कि जो भी रेम्यूनरेशन
किसी एम्प्लॉय को दिया जाता है वो शॉर्ट रन के टाइम पीरियड में एक फिक्स कॉस्ट होता है, लेकिन लॉन्ग रन में जब डिमांड इंक्रीज होती है किसी प्रोडक्ट को लेके, किसी फर्म के प्रोडक्ट को लेके अगर डिमांड इंक्रीज होती है तो उस वक्त प्रोड्यूसर जो है वो अपने प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए कुछ न्यू वर्कर्स को एम्प्लॉय करेगा, कुछ न्यू लैंड खरीदेगा और उस लैंड का उसे शायद रेंट भी देना पड़े। तो ये जो फैक्टर्स होते हैं जो शॉर्ट रन में फिक्स्ड होते हैं, वो फैक्टर्स लॉन्ग रन में वेरिएबल फैक्टर में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। सो दैट इज समथिंग दैट इज रिलेटेड टू लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व। Hello everyone, so let us start the explanation of concept of revenue. In capitalist market structure, the main objective of production is to maximize profit. तो कैपिटलिस्ट मार्केट जो स्ट्रक्चर रहता है उसमें मेन ऑब्जेक्टिव प्रोडक्शन का यही होता है कि वो उसके थ्रू प्रॉफिट को मैक्सिमाइज किया जा सके। So therefore the concept of production is to maximize profit. Therefore the concept of revenue assumes significance. क्योंकि ऑब्जेक्टिव जो प्रोडक्शन का रहता है वो प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है, इस वजह से जो कॉन्सेप्ट रेवेन्यू का होता है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। When total revenue of a firm is higher than its total cost, profit acquired. If total revenue is lower than total cost, losses occur. तो जब फर्म का टोटल रेवेन्यू जो है वो टोटल कॉस्ट की कंपैरिजन में ज़्यादा हो तो प्रॉफिट मिलता है, जबकि टोटल रेवेन्यू अगर टोटल कॉस्ट की कंपैरिजन में कम हो तो लॉस बियर करना पड़ता है फर्म को। तो however, while analyzing profit in the short run, the concept of average revenue and marginal revenue are used more often. तो जब शॉर्ट रन का प्रॉफिट एनालाइज करना हो तो जो एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू का जो कॉन्सेप्ट है वो ज़्यादा यूज में आता है। वी प्रोसीड टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ टोटल रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू एंड एवरेज रेवेन्यू। तो हम यहाँ पे पहले टोटल रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू और एवरेज रेवेन्यू के बारे में थोड़ा जानेंगे। Hello everyone, so let us continue or let us understand the point that is related to total revenue. By selling produced unit, money received by firm is known as revenue. तो जितने भी यूनिट प्रोड्यूस किए जाते हैं उनके द्वारा उसे बेचते हुए जो भी मनी रिसीव किसी फर्म के द्वारा होता है उसे हम रेवेन्यू कहते हैं। टोटल इनकम रिसीव्ड बाय फर्म फ्रॉम सेल इज कॉल्ड टोटल रेवेन्यू। जो भी इनकम किसी फर्म के द्वारा किसी प्रोड्यूस्ड यूनिट को बेचते हुए एक्वायर की जाती है उसे टोटल रेवेन्यू कहते हैं। दिस इनकम इज ऑल्सो नोन एज टोटल रेवेन्यू और सेल्स रेवेन्यू। इस तरह की इनकम को आप टोटल रेवेन्यू भी कह सकते हो या फिर सेल्स रेवेन्यू भी कह सकते हैं। फर्म्स टोटल इनकम इज बेस्ड ऑन टू थिंग्स, प्राइस पर यूनिट एंड टोटल सेल्स। जो फर्म की इनकम होती है वो दो चीज़ों पर निर्भर करती है। पहली है प्राइस, जो भी प्रोडक्ट का जो प्राइस होता है उस पर, और कितना टोटल सेल हुआ है उस चीज़ पर। When both factor or any one factor changes, the revenue of firm changes. तो प्राइस जो प्रोडक्ट का है उसमें अगर किसी तरह का चेंज आता है, इसके अलावा जो सेल्स है अगर उसमें किसी तरह का चेंज अराइज होता है तो इससे जो भी फर्म की रेवेन्यू है उसमें भी चेंज अराइज होने लगता है। Let us try to understand total revenue with one example. Suppose a firm produces pen and per unit market price of pen is ₹50. तो ये एक उदाहरण दिया गया है कि अगर कोई फर्म पेन को प्रोड्यूस कर रहा है और जो फर्म की मार्केट प्राइस है, जो उस पेन की मार्केट प्राइस है वो ₹15 है, and the total sale of firm is ₹100 unit of pen, then total revenue is 100 into 50 is equal to ₹5,000. तो यहाँ पे पेन की प्राइस जो है वो ₹50 है और 100 यूनिट्स जो पेन के हैं वो सेल किए जा रहे हैं। तो अगर इसमें हमें टोटल रेवेन्यू फाइंड आउट करना है तो पहले 100 को 50 से इंटू करना पड़ेगा, जिससे कि ₹5,000 जो है वो टोटल रेवेन्यू आंसर आता है। सो टोटल इसके बेस पे टोटल रेवेन्यू की जो फॉर्मूला है वो ये है कि टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू यूनिट सोल्ड इनटू प्राइस ऑफ कमोडिटी।
that is TR is equal to Q into P. TR, where TR is equal to 5000 is equal to 100 into 50 is equal to rupees 5000. If the so यहाँ पे आप देख सकते हो कि टोटल रेवेन्यू की फॉर्मूला को दिखाया गया है, दैट इज यूनिट सोल्ड इनटू प्राइस ऑफ कमोडिटी. तो यहाँ पे 100 यूनिट सोल्ड किया गया था और जो प्राइस जो कमोडिटी की यानी कि प्राइस जो पेन का था वो ₹50 था. तो इन दोनों को इंटू करके 5000 जो है वो टोटल रेवेन्यू होता है फर्म का. So if sale unit of commodity increases or decreases or price increases or decreases, there is a change in both factor, then the firm total revenue changes. तो अगर जो सेल जो किसी कमोडिटी का है वो इंक्रीज या डिक्रीज होने लगता है या फिर जो प्राइस है वो इंक्रीज या डिक्रीज होने लगता हो तो उससे फर्म के टोटल रेवेन्यू में एक चेंज अराइज होता है. So this was the concept that is related to total revenue. Hello everyone, so let us continue with the explanation of average revenue. We find out average revenue of a firm by dividing total revenue to sales unit. Average revenue is equal to total revenue divided by total sales. So AR is equal to TR upon Q, in which AR is equal to average revenue, TR is equal to total revenue and Q is equal to quantity sold. तो यहाँ पे एवरेज रेवेन्यू की फॉर्मूला दी गई है. अगर आपको फर्म का एवरेज किसी फर्म का एवरेज रेवेन्यू फाइंड आउट करना हो तो उसकी फॉर्मूला टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय टोटल सेल्स होती है और उसको आप इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो कि AR इज इक्वल टू TR अपॉन Q. यहाँ पे AR जो है वो एवरेज रेवेन्यू है, TR जो है वो टोटल रेवेन्यू और Q जो है वो क्वांटिटी सोल्ड है. So let us understand with the help of example. One firm has sold 1000 unit of pen and total revenue is rupees 50,000. So according to formula, 50,000 divided by 1000 is equal to rupees 50. That is average revenue. So suppose अगर कोई फर्म जो है वो 1000 यूनिट ऑफ पेन सोल्ड करता है और उससे उनको टोटल रेवेन्यू रुपीज 50,000 मिलता है तो इस चीज को अगर हम फॉर्मूला में डालेंगे तो 50,000 डिवाइडेड बाय 1000 तो हमें 50 रुपीज मिलेगा जो फर्म का एवरेज रेवेन्यू है. इट मीन्स द रेवेन्यू पर यूनिट ऑफ पेन, यानी कि पर यूनिट ऑफ पेन को बेचते हुए जो फर्म है वो 50 रुपीज कमा रहा है. तो एवरेज रेवेन्यू जो होता है वो रेवेन्यू पर यूनिट ऑफ आउटपुट रहता है. Normally, firm sells all commodity at same price and average revenue is equal to price. तो जनरली जो फर्म होता है वो एक ही प्राइस पे उनकी सारी कमोडिटी बेच देता है, इसलिए एवरेज रेवेन्यू जो है वो प्राइस के वो किसी प्रोडक्ट के प्राइस के बराबर रहता है. In the next point, I will continue with a marginal revenue. Hello everyone, let us continue with the point that is related to marginal revenue. So the income from per unit sale is average revenue of firm. That is marginal revenue is the revenue from sale of one additional unit. So the marginal revenue is the change in total revenue which result from the sale of one more unit of a commodity. तो जो भी इनकम पर यूनिट सेल करते हुए एक्वायर होती है उसको एवरेज रेवेन्यू कहते हैं, जबकि मार्जिनल रेवेन्यू जो होता है वो एक एडिशनल यूनिट को बेचते हुए जो रेवेन्यू फर्म एक्वायर करता है उसको मार्जिनल रेवेन्यू कहते हैं. सो चेंज इन टोटल रेवेन्यू व्हिच रिजल्ट फ्रॉम सेल ऑफ वन मोर यूनिट ऑफ अ कमोडिटी इज मार्जिनल रेवेन्यू. तो जो चेंज किसी टोटल रेवेन्यू में अराइज होता है एक एडिशनल यूनिट को बेचते हुए उसको हम मार्जिनल रेवेन्यू कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, फर्म रिसीव इनकम ऑफ रुपीज 50,000 बाई सेलिंग 1000 यूनिट ऑफ पेन. नाउ फर्म सेल 1001 यूनिट ऑफ पेन एंड फर्म रेवेन्यू इंक्रीजेस फ्रॉम 50,000 to 50,045 रुपीज, मीन्स इंक्रीज ऑफ रुपीज 45 इज मार्जिनल रेवेन्यू. यहाँ पे एक सीधा उदाहरण दिया गया है कि फर्म सपोज कोई फर्म जो है वो 50,000 रुपीज एक्वायर करते हैं 1000 यूनिट ऑफ पेन को बेचते हुए. नाउ अगर
1000 यूनिट की जगह वो 1001 यूनिट पेन का जो है वो बेचे, तो उनका रेवेन्यू 50,000 से 50,045 रुपीज हो जाएगा। तो ये जो 45 रुपीज का चेंज जो टोटल रेवेन्यू में, उनके टोटल रेवेन्यू में अराइज हो रहा है, उसे हम मार्जिनल रेवेन्यू कहते हैं। So we can say that marginal revenue is the change in total revenue on account of sale of one additional unit of output. तो मार्जिनल रेवेन्यू जो है वो टोटल रेवेन्यू में जो चेंज किसी एडिशनल यूनिट ऑफ आउटपुट को बेचते हुए जो चेंज टोटल रेवेन्यू में अराइज होता है, उसे मार्जिनल रेवेन्यू कह सकते हैं। Now here formula is given, that is MRN is equal to RN minus RN minus 1. So MR is equal to marginal revenue, N is equal to number of sold units, Rn is equal to revenue from sale of n units commodity. Rn minus 1 is equal to n minus 1 revenue from sale of units. So in earlier example, we have seen that 1000 pen is sold at the price of rupees 50 and total revenue is rupees 50,000. Now if 1001 unit of pen is sold, then total revenue is rupees 50,045 rupees as per the formula. So marginal revenue find out as so the marginal revenue is as under, that is n is equal to 1001 and n minus 1 is equal to 1000. So MRN is equal to Rn minus 1 is equal to rupees 50,045 rupees and rupees 50,000. So here the marginal revenue is 45. तो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन के थ्रू या फॉर्मूला में चीजें डालते हुए भी आप इस मार्जिनल रेवेन्यू को प्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे Rn की जगह पे 50,045 रुपीज रखा है और Rn माइनस 1 पे 50,000 रखा गया है, जिससे कि आंसर मार्जिनल रेवेन्यू जो आपको मिलता है वो 45 रुपीज ही रहेगा, जो ये दिखाता है कि टोटल रेवेन्यू में एक एडिशनल क्वांटिटी को प्रोड्यूस करने पर या एक एडिशनल क्वांटिटी बढ़ाने पर कैसा चेंज अराइज होता है, यानी कि फर्म के टोटल रेवेन्यू में एक एडिशनल यूनिट को सेल करने पर किस तरह का चेंज अराइज हो रहा है, वो मार्जिनल रेवेन्यू के द्वारा यहाँ पे प्रेजेंट किया गया है। थैंक यू।